everyone. Welcome to another episode of In Conversation, my advisor coach. Today in conversation, our guest is Mr. Umesh Sharma, CIO Debt with the wealth company Mutual Fund. Welcome, Umesh, to In Conversation, my advisor coach. Thank you so much for having me. Our pleasure, our pleasure. So, Umesh, before we dive into our interesting conversation, if you could just tell our viewers about your investment management journey and your experience. Yes, so I started my journey on the buy side. So I've been on the buy side all along. I joined the markets in January of 2000, and it was a very, very interesting time because at that time, all the tech-related so-called I stocks were in big boom. Hmm. And in March of 2000, unfortunately, the bubble burst, and we saw very, very severe correction in the stock market. It was also commensurately followed by a big rally in the fixed income markets. Yes. I Yes. was in the primary market division of a mutual fund at that point in time, and our was to assess the primary issuances of primarily fixed income securities and some equity securities. Hmm. And the biggest learning was that uh, there were several learnings. In fact, biggest was that fear of missing out, how it works. You could see in action real time. लोग पूरी तरह से ट्रेंड को चेस कर रहे थे, स्टॉक प्राइस दिन ब दिन ऊपर जा रहे थे, और जो लोगों को उनका चेस करने का जज्बा है वो भी बढ़ता जा रहा था उसके साथ साथ. More and more risk people were taking and getting rewarded for it, Uh, at least in the short run. uh, And you were seeing research reports from reputed houses. You can hmm. name any reputed house and look at their research reports, and their buy side targets were getting revised higher and higher. Hmm. And there were a few who were calling out the bubble, maybe too early. Uh, but ultimately, the life of a bubble is such, it bursts, and it burst very, very soon. मेरा खुद का पहला इन्वेस्टमेंट जो था वो एक टेक म्यूचुअल फंड में था. अच्छा. तो मैंने 5,000 रुपये उस समय उस टेक म्यूचुअल फंड में लगाए थे, और उसके बारे में कहा जा रहा था कि जब ये फंड की आईपीओ खुलेगी तो इसका नैव कभी दोबारा 10 रुपये टच नहीं करेगा. Hmm. और सही में भी वही हुआ. उसका नैव कभी टच नहीं किया 10, क्योंकि वो 9 पे खुला, 8 पे गया, 6 पे गया, और फिर 5 या 4 पे चला गया था अल्टीमेटली. अच्छा. और फिर मैंने उसको ट्रैक करना छोड़ दिया. तो Very शुरुआत interesting. काफ़ी ऐसी इस तरह से रही. हाँ. लेकिन मैंने ये देखा कि जब ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है, Hmm. ऑफ कोर्स इट हैज़ अ रब ऑफ इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एज वेल. एंड दूसरा, जब एक एसेट क्लास सही नहीं कर रहा होता है तो कोई और एसेट क्लास सही कर रहा होता है, विच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल लर्निंग. सही. बिल्कुल पब्लिश सही. रिसर्च को आपको फेस वैल्यू पे आपको नहीं लेना चाहिए. आपको पूरी अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, और जो बाकी लोग कर रहे हैं उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही. बिल्कुल और सही. उसके बाद जो मेरा एक दूसरा बड़ा लर्निंग पॉइंट रहा वो था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. Hmm. उसमें हम लोग काफ़ी हद तक इंडियन मार्केट्स वर इंसुलेटेड. There was Hmm. a short span of time within which we have tremendous volatility across asset class, both equity as well as fixed income. बट जब हम इस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, वी वर लुकिंग एट द डेटा कमिंग इन फ्रॉम द यूएस, एंड वी वर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज सम ट्रबल ब्रूइंग. बट द वे दैट इट विल इम्पैक्ट द डोमेस्टिक मार्केट्स, वो हमने नहीं सोचा था. तो उससे एक बहुत बड़ी लर्निंग ये थी कि अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर Hmm. थ्रू द फ्लोस चैनल, थ्रू द एक्सपेक्टेशंस चैनल, एक्सेट्रा. Hmm. Hmm. और बाहर यदि कुछ भी हो रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी आता है. तो Definitely. आई थिंक वी वर अंडर प्रिपेयर्ड फॉर इट, simply because of the intensity that it brought within a short span of time. So of course the equity markets crashed, the rates crashed as well, but then जिस सीवियरिटी से क्रैश हुआ था उसी सीवियरिटी से रिकवरी भी हुई पोस्ट Hmm. 2008. Hmm. सो 9, 10, 11 यदि आप देखेंगे तो फिर से रिस्की एसेट्स ने काफी हद Hmm. तक रिकवर कर लिया. और उस दौरान जो लोग स्टेडी रहे, जो लोग घबराए नहीं, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, दे मेड टन्स ऑफ मनी. Very true. Very true. फिर तीसरा एक्सपीरियंस जो काफ़ी लर्निंग वाला था वो था 2013 का टेपर Hmm. टेंट्रम. Hmm. And at that point in time, actually our domestic economy was in a big spot of trouble.
because of our twin deficits. So we Right. had a large fiscal deficit. We had a big current account deficit at that point in time. And commensurately, and along with it, you could see that the balance sheets of the corporate sector as well as the banking sector were stretched. Mm. And there was a slowdown, and actually RBI, Subara famously admitted that he got it wrong at that time. RBI was cutting rates. Mm. And initially there was a rally in the fixed income markets, and the markets Mm. reversed very severely. Mm. We did not participate in that fixed income rally, and we were sitting on a large amount of cash, looking at the markets rallying every day and Mm. lamenting, our call going wrong. But nevertheless, we held on to it. Mm. And then when the famous Ben Banranki speech came out, there was complete mayhem. And the rates surged. The emerging markets currencies came under severe pressure, Indian currency being one of them, and RBI had to take emergency measures. Yes. There was overnight rate hike at that point in time, and obviously the rates market crashed. And our maiden income fund at that point in time, I believe, just because of that one right call, it went on to be the top performer across 5 or 7 year time scale. Mm. So one big call with conviction, if you get right, that can set your performance up by a large magnitude. But you have to be very careful because it happens in the reverse also. Absolutely correct. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल So ठीक, बिल्कुल ठीक. that was a very very good experience. Mm. 2014, the rate cycle turned, and there was a decent amount of rally for a few years. Fortunately, we Mm. were able to capture Mm. the maximum of that rally. Mm. 2020 COVID was again a different kind of experience, Mm. something not experienced over 100 years, and nobody knew how it would pan out. We also panicked in the beginning, but Mm. by March, we could see that things were sort of getting into place with the fiscal and the monetary authorities getting into the act. And that Yeah. is the first sign. We had seen that in 2008, we had seen that in 2013. Once these authorities come into the picture, then things can change very very quickly. Mm. And once we came into, so March was probably the peak of the crisis when RBI came out with several measures. The government announced Mm. a lot of measures, and by June it was clear that things are going to be okay. Mm. Uh, Nevertheless, not many people could take advantage of it. Many people actually booked losses at exactly the wrong moment. Mm. There were only a handful, if I recall my conversations with many people, they were able to get that period without redeeming or maybe even investing some amount. Mm. Mm. So Mm. what we have learned over the past several cycles is जब भी invest, as Rothschild said, invest when there is blood on the street. Mm. तो तब अपने को घबराना नहीं है, पर अपनी Very. डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वो घबराने की होती है. तो आपको अपनी डिफॉल्ट सेटिंग से ऊपर उठना होगा. बहुत कम लोग कर पाते हैं वो चीज. बहुत कम लोग कर पाते हैं. बहुत हम कम खुद लोग. हम खुद बाद में कभी-कभी सोचते हैं कि यार ये हमने तब किया, उससे पहले यदि कर लेते तो ज़्यादा फायदा होता. Yes. 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 बट नेवरदलेस अपनी कोशिश ये होनी चाहिए, और डेफिनेटली यदि आप वो डिसिप्लिन को फॉलो करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली मिलना है. So, Absolutely correct. so I've worked with large institutions. I've worked with smaller firms with flat structure also. Each have their own strengths and weaknesses. The key learnings are you execute with conviction if you have a strong view, which is rare. So we will rarely have very very strong conviction, but you have, then you go with proper position sizing. That is very very important. मेरा बहुत strong view है पर मैंने थोड़ा सा ही उसमें execution में डाला, so that will not give me the result. यदि मुझे Right. 100 रुपए इन्वेस्ट करना, मेरा बहुत कन्विक्शन है, मैंने 10 रुपया ही इन्वेस्ट किया, so I don't get to earn on 90% of No. my money. रिजल्ट ही नहीं So, आएगा. so yeah, so you go if you have conviction, because it is very, very rare to have conviction in the financial market. Maybe Very true. 5 or 6 times in your whole investment journey where you have 100% conviction, Very true. Very right? true. Very true. So use that to your maximum. Otherwise,
there will be majority of the periods when you have a medium amount of conviction or maybe low amount of conviction, you go with the flow. So downside protection is more important than upside participation. ये एक मेरी खुद की लर्निंग है और मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी उसी को रिफ्लेक्ट करती है. You cannot capture all the gains in trading. You win some, you lose some. Don't allow it to become a large part of your strategy. Very true. So align portfolios with medium to long-term thinking, and each portfolio is designed to fulfill a specific objective, and you should stick to it. Excellent, excellent, wonderful. No, very well put across. Umesh, Wealth Company Mutual Fund ने recently liquid fund launch किया. So how is the experience of launching this first fund? And बाकी fixed income funds में क्या plans है ahead? हम एक नई AMC है, एक नया फंड हाउस है. बहुत लोगों के लिए एक नया नाम है कि पेंटोमैथ ग्रुप ये कौन सा ग्रुप है. तो सबसे पहले लोगों को बताना, एक पूरी टीम एस्टैब्लिश करना. So I think Madhu Lunavat, who is heading this particular venture of the Pentomath Group, she has done a fabulous job getting the whole team together, getting the infra together, and launching not one, not two, but 4 NFOs at the same time. Yeah. And fortunately for us, the hard work that the team has put under Madhu's leadership has borne fruit, and we were able to collect almost 2,000 crores across the 4 NFOs that we closed on 8th of October. In the liquid fund particularly, we closed slightly less than 1,500 crores in the NFO. So all in all, it has been a very good experience. Hopefully our investors are going to say the same post 1, 2, 3, 4, 5 years of experience with us. And in terms of launches, we believe that we started with the liquid fund because हमारा ये फर्म बिलीफ है कि जो लिक्विड फंड होता है वो एक रूट की तरह है. तो यदि मुझे एक फिक्स्ड इनकम एयूएम का ट्री मुझे उगाना है तो पहले वो रूट से शुरू होगा. बिल्कुल ठीक. तो जो रूट्स हैं वो इस तरह के फंड से, जो एक बहुत ही बेसिक फंड है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो. तो उससे हम शुरुआत करें और फिर उसको हम बढ़ाएं, धीरे धीरे उन जड़ों को गहरा करें. एंड डेफिनेटली जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा तो और भी फंड आएंगे. Maybe the next fund that we are going to come up with on the fixed income side would be a money market fund. And then on, ultimately the aim is to you have funds across the yield curve. Right. तो पूरे yield curve पे, ताकि आइडिया इस कि जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे हिसाब से. एक है आपका स्टेबिलिटी फोकस्ड जो इन्वेस्टर होते हैं, जिनको की वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, जिनको ज्यादा सर्टेनिटी चाहिए और जिनको रिस्क नहीं चाहिए बिल्कुल. एक तो वो हो गए. एक वो होते हैं जिनको इनकम जनरेशन चाहिए कि हमको ओवर द मीडियम टर्म से 2-3 years वी वांट टू गेट अक्रूअल इनकम. We don't want to low return portfolio. We don't want to volatile a portfolio. So somewhere in between. And there's a third kind of class जो कहता है कि we know a little bit about fixed income, and we know that there are opportunities to gain from fixed income investments as well. So जैसे ड्यूरेशन के आपके एसेट्स हो गए जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, या क्रेडिट एसेट्स हो गए जो आपके क्रेडिट रिस्क फंड्स होते हैं. सो मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो या तो स्टेबिलिटी या तो अक्रूअल कैटेगरी में रहते हैं. तो बेसिक आइडिया इज टू हैव फंड्स अक्रॉस दीज कैटेगरीज, एंड जो फंड्स को आप रन करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी भी अकॉर्डिंगली डिजाइंड होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, यदि मैं स्टेबिलिटी फोकस्ड फंड है मेरा, so there it will be minimal credit as well as duration risk. Very true. जो income generation fund है, because it will have a duration horizon of 2 to 3 years, so definitely there will be some duration risk, but it is not too high. And there will be some amount of credit risk, because ultimately without taking some amount of risk you cannot get a decent amount of accrual income. But वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो फंड की रिटर्न्स वोलेटाइल हो जाए, या वो क्रेडिट इतना रिस्की नहीं होना चाहिए कि वो उस फंड के करेक्टर को ही बदल दे. जो तीसरी कैटेगरी ऑफ फंड है उसमें डिपेंडिंग ऑन द मैंडेट, यदि मेरा ड्यूरेशन मैंडेट है, सो दिस फंड्स विल ऑब्वियसली टेक ड्यूरेशन रिस्क, and it will be properly communicated to the investors that these funds are meant to take duration risk. Or if it's a credit fund,
then definitely this fund is going to take credit calls. And when you take credit calls, depending on the market conditions, there can be associated volatility. So it's not for everyone. It's only either for the informed investors who understand the risk very well, or it can probably be a small part of overall allocation of your portfolio. So for each investor, for example, यदि एक particular investor है, उसका पैसा स्टेबिलिटी फोकस फंड में भी हो सकता है, उसका पैसा इनकम जनरेशन में भी हो सकता है, उसका कुछ पैसा जो है वो तीसरी कैटेगरी में भी हो सकता है। बिल्कुल तो सही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका मेजोरिटी जो पैसा है फिक्स्ड इनकम का, वो आपका स्टेबिलिटी फोकस्ड या अक्रूवल फोकस्ड एसेट्स में ही रहे। क्योंकि यदि आप रिस्क ही ले रहे हैं तो प्रॉब्लम, देन देयर आर लॉट ऑफ अदर फंड्स व्हिच आर अवेलेबल, लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज व्हिच आर अवेलेबल टू यू टू टेक दैट रिस्क। श्योर श्योर श्योर। इनफैक्ट उमेश, हमारा जो ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पे हो रहा है, जी बिकॉज लॉट ऑफ fluctuations, refluctuations are यस happening globally, uh, and including our own country domestically. ट्रू तो भी हमने ये जरूर देखा है कि पिछले कुछ एटलीस्ट FITD, if I were to look at, हाँ जी the banking credit growth has been between about 9 to 10% के बीच में. It has करेक्ट sharply come down from about 16% यस same period जी last year. जी But of course, RBI has taken a lot of these tactical measures, whether CRR cut or या repo rate cut, and government, of course, through your GST rate rationalization. We did see a bumper, expenditure of almost about 6.5 lakh crore during this राइट Diwali festival season. So, करेक्ट very briefly, if you could just mention on two things. One, that, and I'm combining two questions, कि आपको banking credit growth का आगे क्या scenario लगता है in terms of the growth, because it's all interlinked, यस and with all the global noises around, आपको RBI rate cut का, with inflation also coming down, क्या लगता है आगे? If you could just explain our viewers कि what राइट were these tactical measures taken, their likely impact, and what do you believe is the story ahead for credit growth as well as the राइट rate trajectory? राइट सो सबसे पहले हम जो क्रेडिट स्लो डाउन था जो आपने कहा 16% से जो 9-10% हो गया, इसके पीछे आरबीआई के कुछ मेजर्स भी थे और कुछ मार्केट रियलिटीज भी थी। सो आरबीआई ने जो बीच में जब प्रीवियस गवर्नर थे तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी टाइटनिंग मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट लिए थे, जहाँ पे उन्होंने रिस्क वेट बढ़ा दिए थे सर्टेन कैटेगरीज के। Yes. क्योंकि वो देख रहे थे कि देयर वाज रैम्पेंट ग्रोथ दैट वाज गोइंग ऑन इन सर्टेन कैटेगरीज व्हिच कुड ब्रू ट्रबल डाउन द लाइन। Very true. And in certain sectors, we saw the NPAs rising sharply, and there was a big slowdown that was generated because of those rising NPAs. And both these measures put together had a negative impact on the credit growth. Of course, the economy was also slowing down, and that was having an impact as well. Post that, we have seen a lot of measures from RBI as well as the government. तो गवर्नमेंट का तो दो मेजर स्टेप्स हैं, जो कि एक इनकम टैक्स में रैशनलाइजेशन उन्होंने किया, और दूसरा जो जीएसटी में उन्होंने अभी रिसेंटली जो रेट रिडक्शंस अक्रॉस द बोर्ड किया है। इसके अलावा आरबीआई ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए। पॉलिसी रेट रिडक्शन 100 बिप्स का ऑलरेडी हो चुका है। सीआरआर रिडक्शन 150 बिप्स ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से कि कुछ इम्पैक्ट अभी आना बाकी है। ओवरऑल सीआरआर रिडक्शन इटसेल्फ से करीब 4 लाख करोड़, पौने 4 लाख करोड़ रिलीज किया आरबीआई ने सिस्टम में। इसके अलावा आरबीआई ने ओएमओ परचेज, यानी कि बाजार से जो उन्होंने जी6 खरीदी, तो उसके एवज में जो रुपी लिक्विडिटी जो बाजार को मिली, सो वो करीब 1.5 लाख करोड़ की थी। इसके अलावा उन्होंने यूएस डॉलर स्वैप्स भी किए हैं, जिसमें वो यूएस डॉलर्स खरीदते हैं और कोइंसिडेंट रुपी लिक्विडिटी साथ में बाजार को मिलती है, जो करीब अनदर अबाउट मोर देन 2 लाख करोड़, अबाउट 2.2 लाख करोड़ वाज दैट अमाउंट। सो द रिजल्ट वाज दैट कि आपकी जो ओवरऑल सिस्टमिक लिक्विडिटी है वो करीब 5 लाख करोड़ प्लस से सरप्लस में चली गई, और इससे बाजार को काफ़ी राहत मिली। शॉर्ट एंड पे रेट्स नीचे आए हैं। और लास्ट जो एमपीसी हुई है,
सो उसके अंदर आरबीआई ने कुछ सटल चेंजेस किया है कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसके पहले की जो एमपीसी थी उसमें कहा गया था कि देयर इज वेरी वेरी लेस स्पेस फॉर फर्दर एक्शन फ्रॉम आरबीआई, एंड द स्टांस वाज चेंज टू न्यूट्रल। सो रेट कट्स न्यूट्रल। किए लेकिन स्टांस चेंज हो गया, तो उसका मार्केट रेट्स पे जो थोड़ा बुरा असर हुआ, और रेट्स वहां से उस पॉलिसी के बाद से एक्चुअली ऊपर जाने लगे। 10 ईयर जो इमीडिएट आफ्टरमाथ ऑफ द पॉलिसी करीब 610 हो गया था, वो 660 के आसपास पहुंच गया था। और रिसेंट एमपीसी में हमने देखा है कि जो उन्होंने लेटेस्ट इन्फ्लेशन प्रिंट्स जो आए हैं, चाहे वो हेडलाइन हो चाहे वो कोर हो, दे हैव बीन कंटिन्यूअसली सरप्राइजिंग ऑन द डाउन साइड, एंड दैट इज व्हाई एक्चुअली जो आपका रियल रेट है, यानी कि जो नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन जो हम करते हैं, तो आपको रियल रेट मिलता है। सो दैट हैज बीन ऑन द हायर साइड, and there was this subtle change in messaging where they said that there is space for us to address growth concerns. Uh, so it was a very very clear communication to the market that they are waiting for the transmission of previous actions to be happening. Also, they are waiting for not only the transmission of their own actions, they're also waiting for the impact of the government actions. चाहे वो इनकम टैक्स कट हो या जीएसटी कट हो, उसका किस तरह से डाउन द लाइन इकोनॉमी में उसका इम्पीटस कैसे फ्लो करता है, और उसका लास्टिंग इफेक्ट ग्रोथ पे क्या रहता है। इसके अलावा एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टैरिफ अनसर्टेनिटी, एंड उसकी वजह से अब वो कब रिजॉल्व होता है नोबडी नोज। द एक्सपेक्टेशन वाज दैट द बेस केस एक्सपेक्टेशन इज दैट इन द नेक्स्ट मंथ देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रेजोल्यूशन, बिकॉज अगर वो एक फैक्टर ऐसा है कि वो रेजोल्यूशन यदि हमें मिल जाता है तो इट विल अनलीश द एनिमल स्पिरिट्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर बैक अगेन। यस, यस। बट जब तक वो कंटिन्यूअस चल रहा है तब तक सर्टेन सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी जहां पे भी इसने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है, दे आर ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग वेरी प्रोफ्यूजली, and we feel that in the next policy there is scope for a 25 basis cut. Post that it will depend on how this tariff uncertainty resolves, number one. Number two, what are the lasting impact of the RBI and the government measures, उसका क्या impact हमें आने वाले डेटा में दिखाई देगा, उस पर फर्दर डिपेंड करेगा। अगर यदि हम केवल इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर इज डेफिनेटली स्कोप फॉर आरबीआई टू डू मोर देन 25 बिप्स। इवन अगर आप उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखें तो एक्चुअली उन्होंने अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन हायर रिवाइज किया था इस पॉलिसी में बाय 30 बिप्स, बट वी लुक एट द फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्यू ऑन क्यू यदि आगे देखे जाएं तो वो दे हैव बीन एक्चुअली रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स, and there's a downward trend in GDP growth. So scope is definitely there, but beyond 25 bips, I think it will be data dependent. श्योर, डेफिनेटली। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, जो मेरा इनफैक्ट नेक्स्ट सवाल था आपसे, अबाउट द द टैरिफ। जी, आई थिंक आज की डेट में किसी को अगर टैरिफ की स्पेलिंग भी नहीं पता थी, नहीं मतलब आज दे नो इट वेरी वेरी वेल। इट इज द ओनली थिंग व्हिच फ्लैशेस इन द न्यूज। जी, सो ग्लोबल ग्रोथ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। जी, tomorrow what is going to happen, nobody knows, जी। correct? So आपको लगता है कि the global rating agencies have already taken or will be taking some rate actions specifically on the sovereign credit rating for certain economies? Because we look at ma- many economies today, their debt to GDP ratio is very, I would say the ratio is very, very different, very Yes, dangerous zone. They yes, are bringing a lot of austerity measures, cutting down their yes. expenditures, etc. Because there's no other way. Otherwise, they will all have to rely on IMF funding, and it's not good for the long term. So, आपका इसके बारे में क्या view about the have the global rating actions been done, or they are just being conservative but not doing it right now? So यदि हम global growth को देखें, so let us look at the IMF projections. So what they say is global growth is slowing, but it is not collapsing. So for the time being ऐसा कोई imminent risk नहीं लगता। अगर हम US इकोनॉमी को देखें तो it continues to chug along. Whether you look at the AI spend which is happening, which is helping the economy, you look at the asset prices, whether it is the stock prices, whether it is the credit spreads, whether it is the overall volatility. So वहाँ से कहीं से कुछ ट्रबल का साइन अभी तक नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन द बैकग्राउंड द फेड इज कटिंग रेट्स,
because Fed is looking at, I think, two major factors. One is, of course, the employment situation, जहाँ पे जो रैपिड पेरोल ग्रोथ पहले दिखाई दे रहा था वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और उनको लगता है कि शायद जो उनकी रेट की पोजीशन है वो एक, देखिए, रेट में एक जो आइडियल लेवल सेंट्रल बैंक अचीव करना चाहता है वो होती है न्यूट्रल रेट। तो न्यूट्रल रेट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली वो रेट ऐसी है कि वो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटीज के परफेक्ट ब्लेंड है कि ग्रोथ, इट्स अ फील गुड रेट, इट्स अ फील गुड रेट कि आपकी ग्रोथ भी आ रही है और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ रहा है। सो एक्चुअल रियल लाइफ में इसको अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है, या तो आप थोड़ा आगे निकल जाते हैं या आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो अभी फेडरल रिजर्व को ये लगता है कि उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, लुकिंग एट वेरियस पैरामीटर्स दैट ट्रैक, इज स्लाइटली रिस्ट्रिक्टिव। एंड अब जब हम ये जो पॉलिसी का लीवर प्रेस करते हैं तो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट 6 to 7 क्वार्टर्स डाउन द लाइन दिखाई देता है। तो सेंट्रल बैंक को काफी आगे तक देखना पड़ता है कि 6-7 क्वार्टर डाउन द लाइन कैसी इकोनॉमी होगी, और उसके लिए हमें आज क्या करना चाहिए। जरूर, राइट। सो व्हेन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द यूएस स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग, उसके फैक्टर्स में बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट बेसिक आइडिया वाज दैट दे डू नॉट वांट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू राइज टू मच, and that is why they have started reducing the rates again after being on hold for a very very long time because of inflationary concerns. Absolutely. So वो एक tailwind भी US economy के पास आ रही है. But if you look at their housing situation also, which is the second factor, again it is concerning, and I think we could be seeing slowdown in that part. जो टैरिफ अनसर्टेनिटी है वो ऑब्वियसली जैसे दूसरी कंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है वो यूएस को भी इम्पैक्ट कर रहा है एट सम पॉइंट और द अदर, बिकॉज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ दोस टैरिफ्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द चेन। कुछ प्रोड्यूसर लोगों के खाते में जाएगा, कुछ जो मिडिलमैन है उनके खाते में जाएगा, और कुछ जो है अल्टीमेट जो यूजर्स हैं वो उनके खाते में जाएगा। सो धीरे धीरे वी आर सीइंग दैट इम्पैक्ट coming into the rest. So US का थोड़ा सा situation complicated है, grow कर रहा है, लेकिन it is probably moving towards a slowdown. When that slowdown will happen, we don't know. But for the time being, the Federal Reserve is supporting the economy by cutting rates. I think अभी Wednesday Day कोई एक और policy है, and there is a chance that they will cut by another 25 basis points. That's right. That's right. But at the same time, यदि हम थोड़ा सा लंबा देखें, if you look at the inflation picture, so उनका target 2% है. But if you look at their core inflation, it is or even the headline inflation is much higher than 2%. और typically US में which is dangerous. US में जो core goods inflation होता है वो generally काफी कम होता है, और अब जब हम because of this tariffs we are seeing a continuous rise in core goods inflation. That is the impact which it is causing basically. Exactly. तो वो एक फैक्टर हमको जरा ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरा, एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमी में जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है चाइनीज इकोनॉमी, एंड दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो हम जानते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल फॉलो कर रहे थे। सो बेसिकली जब आप एक इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल फॉलो करते हैं तो यू आर गोइंग टू पुश मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट मैन्युफैक्चरिंग कम्स एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। सो यदि मैं कैपिटल को प्रमोट कर रहा हूं तो वो लेबर की कॉस्ट पे होगा। जो रिसोर्स लेबर को मिलना चाहिए वो लेबर को नहीं मिलके कैपिटल को मिल रहा है। तो वो उस मार्जिन को यूज करके चीप गुड्स एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं और एक्सपोर्ट शेयर गेन कर सकते हैं, और ये मॉडल काफी साल तक अच्छे से चला। बट बियॉन्ड अ पॉइंट जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते चले जाते हैं, रोड्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप एक्सपोर्ट्स, at some point in time the incremental rupee that you put into it does not translate into the same amount of revenue. So actually वो रेशियो डेटोरेट होता जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका डेट इंक्रीज होता है पर आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होता उतना। और चाइनीज इकोनॉमी का डेट बहुत बढ़ चुका है। दे आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट मॉडल टू कंजम्पशन मॉडल व्हिच इज इजियर सेड देन डन। Already they have a big correction in housing which is going on. After the US, China is the largest economy, and that is acting as a drag. And of late, they have also taken various steps, monetary as well as fiscal, and they are still flowing through. But more or less, their growth is now down to 4 or 5% kind of range, maybe going lower in the future.
Lower So in the we are future. right now not in a very big slowdown, but probably we are moving towards one. And Okay. if that forecast comes out to be true, then definitely you are going to see more rating actions More from eating here on. actions to come. Sure, sure. एक you know top of the mind question and topic जो आजकल चल रहा है, gold prices, जी right? जी We've seen already why CYTD almost about 55% rally barring the recent 3-4 days correction. तो gold prices का क्या व्यू है आपका? सो बेसिकली गोल्ड का यदि हम लॉन्ग टर्म प्राइस बिहेवियर देखते हैं तो ये रियल रेट से नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। जितनी हम्म, आपकी रियल रेट्स नीचे जा रही हैं उतना ही गोल्ड प्राइस स्पाइक करता है। हम्म, बट इस रैली के दौरान हमने देखा कि ये जो रिलेशनशिप है इट हैज ब्रोकन डाउन। हम्म, So the reasons primarily are the central banks accumulating gold, and Chinese central bank leads the way here. We saw annexation of forex reserves of Russia post the Ukraine हम्म, attack, and I think that triggered a lot of thought in China that we have a lot of dollar assets, and tomorrow, some sort of action could be taken wherever dollar assets are seized, frozen, and yeah. we need to diversify out of dollar into something else. Obviously, it also ties in with their long-term objective of internationalization of renminbi. Also, strategically, they would हम्म, want a non-dollar alternative as well हम्म, over time to come up, हम्म, whether it is BRICS currency or हम्म, something हम्म, we don't हम्म, know. हम्म, But it works in their favor. And this relentless demand from price insensitive buyers like central banks has also pushed the gold prices higher. very true. यदि हम गोल्ड ईटीएफ्स को देखें, जो इनका एएम होता है, सो द टिपिकली जो नॉर्मल टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, सो अगर उनका ओवरऑल एएम अभी भी जो उनका 2022 में पीक हुआ था उससे लोअर लेवल पे है, तो हम्म, मुझे लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर भी इन द रिसेंट टाइम्स इसमें काम कर रहा है। अ, हमारी जो एडवाइस होती है इन्वेस्टर्स को वो हमेशा ये होती है कि ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्ड शुड बी यूज्ड एज अ पोर्टफोलियो हेज। सो यदि आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, सो 10 से 15 रुपए आपके गोल्ड में होने चाहिए, बिकॉज इट्स इसका जो कोरिलेशन विद अदर एसेट क्लासेस होता है वो लो होता है या नेगेटिव होता है। सो ये आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी रिड्यूस करता है, और अनसर्टेन टाइम्स में दैट हेल्प्स योर पोर्टफोलियो ओवरऑल। हम्म। But to go whole hog into one asset class, I would not advise the I investors agree. to I do so. totally agree. Yes, absolutely, absolutely. And today I think what is happening is the gold across is being more like a scare buy today, Yes, because of the activities which are being followed by the current US administration. yes, And otherwise, if you were to look at from the aspect, gold has always been important to be part of the portfolio, and gold will always continue to be yes, definitely yes. important part of the portfolio. And very rightly said by you, 15-20% is something which is good enough in a portfolio. Don't run and rush for a FOMO reason. जी, और As यदि आपको वो एलोकेशन यदि आपके पास करंटली अगर ज़ीरो है, तो यदि आप उसको उसके आइडियल एलोकेशन तक ले जाना चाहते हैं, तो आप उसको धीरे-धीरे आप धीरे उसमें धीरे धीरे, एडिशन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। बल्क में नो नहीं नो, करने नॉट से ही एट ऑल। अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उमेश, एक थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन, मैं आपसे पूछ रहा था, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स लिसनिंग टू यू, particularly when we talk about fixed income investments and products, about the safety aspect? Because again, FOMO वहां पे भी रहता है. जी, We did see that with credit funds in the past. यस, यस, Okay? बुरा वक्त जब आता है तो नॉक नहीं करके आता, बस आ जाता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली Right? ट्रू। So a lot यस, of credit defaults and belly ups happen, etc. A lot of people lose money. So यस। uh, what is your message to all the viewers listening to you, specifically on the safety aspect while investing in fixed income as an asset class? तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए फिक्स्ड इनकम में टिपिकली वही इन्वेस्टर आता है जो रिस्क एवर्स है।
क्योंकि रिस्क लेने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, हाइब्रिड प्लान्स हैं जो कि स्लाइटली हायर रिस्क पे होते हैं, या आपके पास इक्विटी फंड्स हैं जिनकी वोलेटिलिटी हाई होती है और जो हाई रिस्क होते हैं और लॉन्ग रन में काम करते हैं। तो फिक्स्ड इनकम में जैसे मैंने पहले कहा, स्टेबिलिटी और अक्रूवल, मेजॉरिटी इन्वेस्टर जो होते हैं उनके मेजॉरिटी पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम के जो भी होते हैं वो इन्हीं दो बकेट्स में रहते हैं। सो जब इस बकेट में वो हैं तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो क्रेडिट रिलेटेड वोलेटिलिटी है या जो ड्यूरेशन रिलेटेड वोलेटिलिटी है वो इन फंड्स में ना हो या मिनिमल हो। तो आपके जो अंडरलाइंग फंड्स हैं वो इस फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो अंडरलाइंग फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन फंड्स की फिलॉसफी क्या है, वो किस बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन्होंने पास्ट में कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑल्टर किया है गिवन दी चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, या नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। आपके जो एटलीस्ट जो शॉर्ट एंड के फंड्स होते हैं, जैसे वेरी वेरी शॉर्ट एंड पे जो ऑपरेट करते हैं लिक्विड फंड वगैरह, इनके फोर्टनाइटली हर 15 दिन में आपको पोर्टफोलियो उनके वेबसाइट पे मिल जाता है अलॉन्ग विद ग्रेन्युलर डिटेल्स। उसकी मैच्योरिटी क्या है सिक्योरिटी की, उसकी यील्ड क्या है, मंथली बेसिस पे आपको फैक्ट शीट्स मिल जाती हैं जिसमें आपको पूरा डेटा रहता है। उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसकी बेंचमार्क से लिंक परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आईटीएम पे वो काम कर रहा है, क्या एक्सपेंस रेशियो उसका चल रहा है, किस तरह की रेटिंग वाली सिक्योरिटीज में उसका इन्वेस्टमेंट है। यदि आप ये सब खुद ना करना चाहें बिकॉज आपको ये लगता है कि मैं नॉर्मल नोवाइस इन्वेस्टर, मुझे पता नहीं है कि इसको कैसे रीड करना है, तो आप हमेशा एक प्रोफेशनल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं जो कि ये सब आपके लिए करता है फॉर मिनिमल चार्ज। एंड उसके बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं जिसको आगे चल के कि आपको कोई सरप्राइज ना मिले। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप यदि एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल से लिक्विड फंड को लेते हैं, तो आप ग्रॉस यील्ड से अगर आप उसको रैंक कर लें फंड को, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। जितनी ज्यादा यील्ड फंड की होगी उतना ही, क्योंकि लिक्विड फंड में 91 डेज के बियॉन्ड कोई एक्सपोजर नहीं ले सकता है। करेक्ट। सो जो भी मैच्योरिटी रिलेटेड रिस्क है वो कैप्ड है सभी फंड्स के लिए 91 डेज पे। तो फिर क्रेडिट रिस्क से ही वो एडिशनल स्प्रेड जो है आपके पोर्टफोलियो पे नॉर्मली आती है। वेरी ट्रू। तो हाईएस्ट यील्डिंग फंड विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट पेपर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। सिमिलरली लोएस्ट यील्डिंग फंड बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो या तो उसके पास टी बिल्स बहुत ज्यादा है, या उसके पास कैश बहुत ज्यादा है, या उसके पास सॉवरेन सिक्योरिटीज जो दूसरी हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा है। और जो जो टॉप है वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो आइडियली योर फंड शुड बी समवेयर इन बिटवीन। एंड वो एक मोटा मोटी आपको एक आइडिया मिल जाता है। बाकी फिर उसकी अंडरलाइंग ग्रैन्युलर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ऑब्वियसली अवेलेबल होती हैं, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। बट ये सेफ्टी एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड, बिकॉज सेफ्टी और अक्रूवल के ऑब्जेक्टिव से मोस्ट इन्वेस्टर्स आते हैं। हैविंग सेड दैट, the same investors also invest into funds like credit risk or duration funds or something like a dynamic bond fund, जिस फंड का मैंडेट ही है रिस्क लेना। या तो वो ड्यूरेशन पे रिस्क लेगा या तो वो क्रेडिट पे रिस्क लेगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस फंड का मैंडेट ही यही है और अल्टीमेटली उस मैंडेट की वजह से वोलेटिलिटी होनी है उस फंड में, और आप उसको एक्सपेक्ट करके चलें। और आइडियली इन फंड्स में जब इकोनॉमिक साइकिल टर्न होती है तब इनमें इन्वेस्ट करना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने 2000 में यदि फिक्स इनकम फंड्स में पैसा लगाया होता तो 2003 तक आप डबल डिजिट रिटर्न्स कमा रहे होते। यदि आपने 2008 में इन फंड्स में पैसा डाला होता, और यदि आप यू वर एबल टू एग्जिट एट द राइट टाइम बिकॉज इट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड शार्प रैली, तो आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया होता। यदि आपने 2014 में 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से इस एसेट क्लास में पैसा लगाया होता तो अगेन यू वुड हैव मेड वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। 2020 gave you an opportunity. Recently, in the recent rally, we have seen the long end funds do very very well. So these funds typically outperform at the turn of a cycle. Similarly, credit funds जो होते हैं वो actually they are a corollary to the duration aspect typically, because जब आपकी इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट रेवेन्यूज भी ग्रो कर रहे हैं, उनकी क्रेडिट क्वालिटी भी जनरली इंप्रूव होती है। और यदि आप क्रेडिट रेशियोज देखें, यानी कि रेशियो ऑफ अपग्रेड्स टू डाउनग्रेड्स, वो भी इंप्रूव हो रहा होता है।
सो एसेट समय में क्रेडिट फंड्स बहुत बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं टिपिकली, क्योंकि उनकी अंडरलाइंग क्रेडिट स्ट्रेंथ कॉर्पोरेट्स की इंप्रूव हो रही है। जबकि उस समय में जो आपके ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स हैं वो टिपिकली अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो टिपिकली रेट विल बी मूविंग हायर। वेरी ट्रू। सो ये एस्पेक्ट समझना जरूरी है कि टिपिकली ये जो फंड्स हैं ये अलग अलग समय में इनकी यूटिलिटी होती है। वेरी ट्रू। जस्ट टू तो ऐड, सॉरी, हाँ जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। जस्ट टू ऐड कि जो आपने कहा कि प्राइस रिस्क का फिर भी सोल्यूशन क्रिएट हो सकता है विद जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड अप्रोच विद द अक्रूवल्स, बट एब्सोल्युटली। क्रेडिट रिस्क का जी, सोल्यूशन निकलना बहुत समटाइम्स मुश्किल कैन है। बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। जी। सो आई सो थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा यस, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। यस। Very true. Very true. Wonderful. So, well, for our viewers, this is Mr. Umesh Sharma, CIO Debt with the Wealth Company Mutual Fund. Umesh, a very, very informative discussion and conversation today. I think मेरे हिसाब से हर एक व्यूअर को ये वीडियो इंटरव्यू जरूर, पॉडकास्ट जरूर ध्यान से सुनना चाहिए, बिकॉज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यू समड अप द मार्केट for last 25 years, I can say that. And what are your thoughts going ahead as well? So thank you so much for taking out time and sharing your deep insights with us. Thank you so much for giving the opportunity. It was a learning experience for me as well. Thank you so much. Thank you so much, Umesh. Take care. Thank you.